100th birth anniversary of Pandit Amarnath, a legend of Indian music, one of the leading exponents of the Indore Gharana. And to celebrate the occasion, we have got a biography on Pandit Amarnath. Before I go further into the evening and we take the proceedings forward, I'd like to invite Astha and Kabir, grandchildren of Pandit Amarnath, to do the honors, light the lamp and garland Panditji. Astha, Kabir, if you can. Thank you so much, Astha. Thank you, Kabir. And as is fitting for all things that are art and music and learning, it all should begin with the Saraswati Vandana. And who better than one of Guruji's leading disciples to do us the honors? Rekha, if we could just have you. A round of applause, please, Rekha. ये बहुत मुश्किल वंदना है, गुरुजी ने लिखी है, उनकी कॉम्पोजिशन है राग रंजनी में. सो मेरी कोशिश है, मैं सिर्फ जस्ट एज एन ऑफरिंग आई विल डू इट. धर्म मोक्ष दे देवी श्वेत पद्मासना. धर्म मोक्ष दे देवी श्वेत पद्मासना. करवर कर वीणा धरे सिद्धि गुणा ममता मना. करवर कर वीणा धरे सिद्धि गुणा ममता मना. धर्म मोक्ष दे देवी श्वेत पद्मासना. मोरी लाज तोरी लाज जैसे कर राखे. मोरी लाज तोरी लाज जैसे कर राखिए. सुन करुणा देवी भगवती वंदना. सुन करुणा देवी भगवती वंदना. धर्म मोक्ष दे देवी श्वेत पद्मासना.
Thank you so much, Rekha. That was absolutely divine, and we couldn't have asked for a better beginning to the evening. I have been asked in the flow of events to talk about Pandit Ji, but I think I'll leave that to the people who are capable of talking about him. Nirmal, the author of the book, and the daughter-in-law of Pandit Ji. I think it's a very unique thing for a daughter-in-law to be writing a biography of a father-in-law. I haven't come across one, you know. And of course, Rekha is here to talk about, and Gajra, his daughter. So they'll have the conversation. You'll find out a lot about Pandit Ji. What I'll talk about, a little about, is the book. In 20 years of my editorial journey, over 20 years now, बहुत सारी ऐसी किताबें की हैं जिनको करते वक्त, जिनको एडिट करते वक्त, जिनको पब्लिश करते वक्त ऐसा लगता है क्योंकि यू हैव कम इन टू दिस फील्ड टू डू दिस बुक, यू नो, दिस वॉज fated for you and you have done it. बहुत सारी ऐसी किताबें हुई हैं in 20 years have, but there are very few books जिनको करते वक्त ऐसा लगता है कि if this were the end, your life has been lived well, you have done something. And this book is one of those books. If I were to go back, turn my back on publishing today, on editorial today, I would have felt, okay, I have done something that's worthwhile in these 22 years that I have been in the field of publishing and editorial. This is what this book means. I can't thank you enough, Nirmal, for trusting Om Books International with this. It's a book in Hindi, so I have not actually edited the book. My colleague here, Sonali, Sheila, Sonali is here, and I'd like her to come on stage for just a moment, if you could, because I think she deserves a lot of credit for the book. Sonali and Sheila, they have. So she's responsible. I've just been somebody who has been there. It's particularly satisfying for me that we could publish this book in time, as planned. That's a rarity, as I don't know, there are authors. Arunadi is here, Satya is here. I hope Satya is here. They'll tell you that how difficult it is for Shantanu to publish anything on time. And I'm glad because there are authors, and I know I have been heavy-handed on this. There are authors who have complained about my heavy-handed attitude also, and I know I have been heavy-handed on this with the designer, with Sonali, every other day sort of, हुआ कि नहीं, कहाँ तक पहुँचा. The date is sacrosanct. We can't miss this date. And trust me, at times it is necessary to be a bit heavy-handed to get it on time. There are books that require that. Sumant Batra's Anarkali, we had to publish by a certain date. We received it very late. We had to. I had to be what I had to be. Gajra's book that we published had to come out on a certain date. I had to be what I had to be. And I'm so glad that today, 22nd of March, 2024, the 100th anniversary of a legend, we are able to mark it with a biography by her daughter-in-law, Nirmal Chawla. You know, I've always believed in the word serendipity, and every book, the journey has been serendipitous for me. Here also, but for the fact that about 7-8 years back, Rekha
the first time that I met Rekha at a function at Habitat, I have said this at other forums, but there are people here who don't know. I met Rekha for the first time, and in the course of a dinner, she mentioned a dictionary of Hindustani classical music terms that had been published almost 30 years back. And she mentioned if I would like to have a look at it and see if we can renew that. There are some people you simply don't say no to. Rekha is one of them. I said yes. I moved from HarperCollins after that, moved to Penguin, the book. But the book moved. The book is available here, a dictionary of Hindustani classical music that, again, one of its kind, a dictionary of Hindustani classical music that Pandit Amarnath wrote, and for which a new edition, Rekha did a lovely, lovely forward introduction to the book. We published the book, and we were supposed to release it 4 years back, around this time, but the universe had other plans. Lockdown intervened, COVID came, and वो एक unfinished सब business रह गया, which I think has come full circle today with this. Not that we didn't have scares about COVID even a month back. Both Rekha and Gajra, as if to give us a replay of 4 years back, went down. But thankfully, they're here. And so we are here now at Kunjum. When I first brought Gajra here, I told her I'd like to do a book release with you someday in this store. We were supposed to have a release last month, a couple of months back, but as I said, COVID intervened, her book was supposed to be. But everything has the plans that the universe makes are always better plans. This is it. I couldn't have asked for a better book, for a better date, and most importantly, for a better place. As I have said, I am an unabashed admirer of this store. I think Amir Khusro ne किसी के बारे में, I think it's mistakenly thought of as Kashmir, that he said, if there is paradise on earth, this is it, this is it, this is it. He didn't say about Kashmir. But whatever, as far as I'm concerned, if there is a paradise for book lovers on earth, this is it, this is it, this is it. You know? And we couldn't have asked for a better venue. Thank you, Subir. Thank you, Ajay, for giving us the venue. And thank you, this wonderful team at Kunjum, which is not just about the store. And believe me, I am from Om Books International, and there's a conflict of interest here. You know, we have stores of our own, but, you know, without further ado, I have said a lot. I think this book needs to be translated, should be translated. I have offered my services, and I'm waiting for approval from daughter-in-law and daughter. And if they fight, I hope they fight, and whoever supports me in that, I'll just side with that person. Before I call up on stage for the formal unveiling of the book, just a request. There are copies of the book available, there are copies of the dictionary available. Please buy the book. Now, I often joke, and I'll do that again, the doors will not be opened for anybody without a receipt of purchase. You know, you have to buy the book. You know, and the first 35 buyers of the book get a CD of Pandit Amarnath free. The next 50 buyers of the book get another book free. Please buy the book.
That's the only way publishing and writing can be supported. On that note, I'd now like to invite Nirmal to come on stage. Ladies and gentlemen, the author of the book. Rekha, if you could just come on stage, please. Shall I call you also on stage, Gajra? Please, please come on stage. This is one, like, she asked me, what about moderating? I said, please do. I don't want to be asking questions. It's such a weight off my shoulder. So she'll be doing the. And I'd also like to invite on stage for the unveiling Vishalji. If you could just come on stage. And please get me, I'm at the edge, don't cut me out of the frame. Ladies and gentlemen, Pandit Amarnath, Sangeet Nama, माँ से सुर का नाता, Nirmal Chawla. Thank you so much. If we can, no. We'll just, play, absolutely. Before we begin the conversation and we have the guests back on stage, there are a couple of audio visuals on Guruji that we have. If we could just dim the lights and play those visuals, Anshul. भारतीय संगीत परंपरा के साधकों की सूची बहुत लंबी है। आज जिस विशेष व्यक्तित्व का हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं, उनका नाम है श्री अमरनाथ। अमरनाथ जी का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान है। अमरनाथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो संगीत को जीते हैं, महसूसते हैं और भोगते हैं। इसी संगीत के माध्यम से वे कबीर, सूर, तुलसी, बुल्ले शाह और मीरा जैसे महान आत्माओं की सोहबत में अपने आप को खड़ा पाते हैं। जब नाद साथ Pandit Amarnath, musical genius, was widely acknowledged as the foremost exponent of the Indore Gharana, pioneered by his guru, the late Ustad Amir Khan Sahib. He was born in 1924 in the village of Jhang near Lahore. It was a town associated closely with the story of Heer, whose mazhar was strangely called Mai Heer Ka Mazhar, and for whom he had heard his mother had often sung. The lonely motherless Amarnath in his childhood felt drawn to the Sufi music associated with the place, and here was born a lifelong connect. He was voted by Dr. Raghav Menon in the Times of India as one of the 4 great genius musicians of Hindustani music in the 20th century. The many facets of his genius included the pioneering of a new teaching method to be handed down through generations. He refreshed every aspect of tradition that he worked on, including the discovery of new rags, composing for theatre and cinema, and expressing the finer nuances of the art of music through lecture demonstrations. Above all, in the age of stardom, at a time when a rehearsed performance was the order of the day, he was in pure meditation while he performed rag after rag on the concert platform. In the manner of the legendary court composers of the Hindustani tradition, Pandit Amarnath contributed over 200 original Khayal compositions and several rags to the nation's classical repertoire.
this achievement places him in a most distinguished and rare category of musicians of the 19th century, the Vagekars. Panditji has thought out many original rags and rag compounds as well as adopted several Carnatic rags into the Hindustani style, which now form an integral part of the repertoire of Hindustani music and of his gharana. Some of this creative output, both literary as well as musical, has been archived at the Indira Gandhi National Centre for the Arts in New Delhi and the Samvad Foundation in Mumbai, run by Satyashil Deshpande. Panditji was initially nurtured by his first guru, Professor B.N. Datta. In those days of gracious gurus, Dattaji gave the young Amarnath encouragement to move on to learning music from his idol, Ustad Amir Khan Sahib. Ustad Amir Khan Sahib was initially not keen on accepting this young man as his shishya, but soon that changed. From being the reluctant guru, Ustad Amir Khan Sahib became the indulgent father within no time. He even gave in to his shishya's gentle persuasion and reassurance and sang the only ghazal of his career, composed by Pandit Amarnath with complete trust in his ability. This was for a documentary film on Mirza Ghalib made for the Ghalib centenary year celebrations. The documentary was made by the legendary filmmaker M.S. Satyu, and the ghazal in Ustad Amir Khan Sahib's voice was sheer magic. In fact, Panditji's relationship with Sri Satyu was one of a perfect meeting of minds. Even when the physical distance between their cities separated the two, Satyuji often connected with Panditji and was familiar with the latter's love for Punjab. Satyuji and Panditji were both very strongly pained about Punjab burning in the 80s, and so when Satyuji was making Choli Daman, he remembered Panditji once again. The result was ever so soulful. For Panditji, who lived the Guru-Shishya philosophy, it was time to give back to music. If in Ghalib he proved himself to be the devoted and loving Shishya, now it was time to play the indulgent Guru himself. He proudly walked in the footsteps of his gurus by being an exemplary and generous guru himself. Teaching since 1957, first as head vocalist music department in Triveni Kala Sangham, and then as guru Hindustani music at the Sri Ram Bhartiya Kala Kendra. Two of Panditji's favourite shishyas, the late Shanti Sharma and Rekha Bharadwaj, sang soulful compositions for their guru. Several performing artists have trained under him. Well known amongst them are the late Mahendra Sharma, Baldev Raj Verma, the late Shanti Sharma, Amarjeet Ji, Shri Brij Bhushan, Dr. Chandranath Chatterjee, Vikram Seth and Rekha Bharadwaj, as well as students from Bangladesh, Afghanistan and Pakistan. Panditji's composition of the Meera Bhajan in the film Garam Kot won Lata Mangeshkar Ji's heart, and she included it in the list of her top 10 favourites of the 1950s. Panditji is the author of Hansa Ke Bain, a collection of 101 poems in Hindi. Tinged with the philosophy of attachment with detachment, many of his poems are in the form of poetry that can be sung. His verse was influenced by the Sufi approach to life and steeped in the Bhakti Ras, where the lover and the divine are one. संगीत में एक ही रस होता है, वो है भक्ति रस। श्रृंगार करता है वो भी भक्ति में करता है, करुणा होती है वो भी भक्ति में होती है। तो इसी तरीके से भक्ति ही अल्टीमेट रस है।
Gulzar Sahab once remarked at how moved he was by Pandit Ji's generosity in sharing both his music and his poetry that made him different from most stalwarts of the arts. Pandit Ji's family includes his late wife Maya Chawla, his son Dr. Vishal Chawla, and two daughters, the late Vidushi Bindu Chawla and Gajra Kotari. Pandit Ji performed widely both in India and abroad. He was the first Indian to perform at the prestigious Forbes Art Museum, Harvard University, USA. Over the years, he performed at concerts and major music festivals all over the country, including Shankar Lal, Swami Haridas, Tansen, Vishnu Digambar, and the Savai Gandharva festivals. His admirers were from all walks of life, from immigrants to editors of national newspapers to best-selling authors. All they wanted was to learn music from him when he was alive, and all they wanted to do after he left his body was to eternally celebrate his music, the music that he left behind for all of us as he finally joined his beloved mother to sing for Mai Heer. उसका संसार मस्ती से भर गया, मस्ती मस्ती, तृप्ति, हर तरफ सुख सुख सुख, हर तरफ तू ही तू, तू ही तू। अलमस्त दीवाने, अलमस्त दीवाने, अलमस्त दीवाने, दीवाने मैं राम भजन हूँ या बाबरिया, मैं ता राम भजन हूँ या बाबरिया, मैं ता राम भजन हूँ या बाबरिया, राम भजन हूँ या बाबरिया, मैं ता राम भजन हूँ या बाबरिया। उथलावन फिरे, उथलावन फिरे, फिरे नहीं अगन आहूतियाँ पावनिया, मैं ता राम भजन हूँ या बाबरिया, मैं ता राम भजन हूँ या बाबरिया, मैं ता राम भजन हूँ या बाबरिया, मैं राम भजन हूँ या बाबरिया। ओथे मागन बिंदी, ओथे मागन बिंदी, ओथे मागन बिंदी, बिन मेहंदी सजन मन भावनिया, बिन मेहंदी सजन मन भावनिया, मैं ता राम भजन हूँ या बाबरिया, मैं ता राम भजन हूँ या बाबरिया, राम भजन हूँ या बाबरिया, मैं ता राम भजन हूँ या बाबरिया। गीत और अध्यापन, इन दो कार्यों के अलावा आप क्या हॉबी है, क्या आपकी रुचियां हैं, किस प्रकार से आप अपना समय बाकी पसार करते हैं? हमारा समय तो ये है कि से ही उठ के रियाज करते, फिर थोड़ा सिखाने के लिए चले जाते हैं, उसके बाद आके थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर अपना ज़रा घर में बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, फिर घर का कोई काम हो, ऐसे बहू को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, इन बच्चियों को हो, मेरे पोते को हो, वो तो तरीके से उनका कुछ तो फिर अपना
फिर उसके बाद जो समय बचता है आराम करने के बाद फिर मैं पढ़ता हूँ। उसका वो है, कभी कभी मैं किचन में खाना भी अच्छा साथ कंपटीशन रहता है मेरे। दोनों को पता नहीं कि वो मेरी गुरु है कि मैं उसका गुरु। जी स्वाद का भी समन्वय है। अवश्य। वो आपने सुना नहीं कि वो जो खाएगा नहीं वो गाएगा कैसे? बहुत ही एक विनम्र भाव से, जिज्ञासु भाव से आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। नहीं, आप अच्छी तरह से करिए। आपने जो साधना की इतने वर्षों तक, संगीत को अपना मीत बनाया, तो इससे आप किस प्रकार का अनुभव करते हैं? किस तरह की उपलब्धि आपको जीवन में मिली और किस तरह का जोश आपको मिला है? आपने अपने आप उसका बहुत अच्छा जवाब दे दिया। कहा संगीत को मैंने मीत बनाया। एक तो मीत से क्वेश्चन कोई नहीं होता। मीत तो होता ही वो है जिसके साथ सवाल नहीं किया जाता है। लेकिन उससे जो मुझे दुख भी हुआ वो भी बताता हूँ। सुख ये प्राप्त हुआ कि जब मैं ले लेता हूँ या जब संगीत की तरफ मेरा ध्यान हो जाता है, गाने गुनगुनाने लगता हूँ, तो एक अजीब किस्म की ऐसा मालूम होता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और यानी जो चीज किसी बड़े से बड़े आदमी को, बड़े धनाढ्य आदमी को लेनी मुश्किल होती है, वो मुझे छोड़नी आसान होती है। कृतकृत्यता का अनुभव। हाँ। और दुख उसमें सिर्फ इतना हुआ कि अरे जरा थोड़ा सा समझ आने लगा था, अब उम्र जा रही है और शक्ति कम हो गई। बस ये दुख है और वो सुख है, चाहिए नहीं है। मैं प्रसन्न, मुझे कुछ पूर्ण अनुभव, इसको पूर्णमदः पूर्णमिदं, इसको वो भी कुछ समझ लीजिए। न मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी है, न मेरी कोई संगीत के इलावा मित्रता है, और कोई के लिए कोई ग्रज, कोई कुछ नहीं। मैं अपने आप में तृप्त हूँ। बस कभी कभी दुख है कि अरे इस वक्त जब इतनी समझ में आ रही है, जरा सी शक होती, जरा सा बस वो। लेकिन ये तो शायद हो सकता है सारे कलाकार महसूस करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो इस भाव का सुर हमको सुनाइए। जब ही नाद साधे तब पार तब जब ही साधो तो पार ब्रह्म हुई, तब पार जब ही नाद साधे तब पार ब्रह्म That, I think, deserves a round of applause. And if we could have the lights on, and with that, it's time for me to get off the stage and invite Gajra, if you could come on and take the proceedings forward from here on. Nirmal, please, आइए, और Rekha, please, on stage. Thank you, Shantanu. That was beautiful. First of all, thank you so much. This is a wonderful turnout despite the crisis that we have in Delhi.
and I think all of you are very brave to have come here despite all the traffic regulations and all the other things happening in Delhi. So a big warm thank you to all of you who are here. This is a dream come true for both of us, हम दोनों के लिए ही. मैं तो उस घर की बेटी थी, थोड़ी सी पापा की परी जो हमारी लिंगो में कहा जाता है, थोड़ी बिगड़ी हुई शहज़ादी. तो इसलिए मैंने सबसे कम समय एक्चुअली स्पेंड किया अपने घर में, और शादी भी काफ़ी जल्दी हो गई, तो इसलिए मैं दूर ही रही. लेकिन मुझसे कहीं कहीं ज़्यादा जिसने पंडित जी का साथ दिया और उनके साथ समय गुजारा, उनको हर तरह से उनकी सीख और उनकी कही बातों को संजोया और बहुत ही प्यार से उन्हें समझा और एक तरह से धरोहर बनाया, वो मेरी निर्मल भाभी हैं. और हुआ ये कि जब पंडित जी ज़िंदा थे तो उस समय तो जैसे बहुत बार होता है, लड़कियां रिबेलियस होती हैं और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इतनी आतुर होती हैं कि पीछे मुड़ के बहुत ज़्यादा देखती नहीं. मैं भी उनमें से एक थी. लेकिन मेरी बहन जो एक बेहतर बेटी थी, उन्होंने काफ़ी हद तक संगीत पापा का आगे ले जाने के बहुत से कार्य किए, बहुत श्रद्धा से किए. 2017 में उनका निधन हो गया और उसके बाद मैं एक्चुअली बहुत एक ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ मुझे कि बहुत से ऐसे अधूरे काम हैं जो पूरे करने हैं, चाहे पंडित जी की किताबें हों, चाहे उनका म्यूज़िक हो जो डिजिटाइज़ नहीं हुआ था, और टेक्नोलॉजी के रहते अगर उसे डिजिटाइज़ ना किया जाए तो वो बिगड़ सकता है और हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए वो धरोहर जो है वो एक तरह से खो सकती है. तो ये जो एहसास था, ये मुझे था कि कुछ करना है, मगर अगर रेखा ने मेरा साथ ना दिया होता, मुझे हिम्मत ना दी होती कि ये पॉसिबल है, क्योंकि बेहतर बेटी, जहाँ तक संगीत का सवाल है, इनसे बेहतरीन बेटी तो हो नहीं सकती. इतना नाम रोशन किया है, इतनी श्रद्धा रखती हैं अपनी गुरुजी की तरफ. मतलब मुझे पूरी तरह से आवाज़ भी नहीं देनी पड़ती और वो मेरे साथ खड़ी हो जाती हैं. तो उस हिम्मत की वजह से पिछले कुछ सालों में, आई एम सॉरी मैं बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं जा रही, क्योंकि ये सब शेयर करना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी सालों की ये कहानी है. तो हमने 2017 के बाद कुछ छोटे बड़े एफ़र्ट्स किए हैं, जो कि पंडित जी के इस ट्रेजर, इस ख़जाने को दुनिया के सामने जीवित रखना उनके जाने के बाद. उस दिशा में हम लोगों ने अपनी छोटी सी कोशिशें की हैं. आप में से जो लोग उनके म्यूज़िक को, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनकी एक वेबसाइट है www.panditamarnath.in, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है. अभी तक डिक्शनरी जो है वो आ चुकी है 2020 में. हम उसे पब्लिकली रिलीज़ नहीं कर पाए, लेकिन अवेलेबल है. पेंगुइन हैज़ पब्लिश्ड दैट डिक्शनरी. तो वो एक किताब है. उस डिक्शनरी का हिंदी ट्रांसलेशन बहुत जल्द आने वाला है. और उसके अलावा बहुत सा उनका म्यूज़िक है जो अब CDs पे अवेलेबल है, और कुछ ऐप्स पर भी अवेलेबल है, जैसे कि raagya.com, और उसको लेकर आगे भी कुछ प्लान्स हैं हमारे. तो म्यूज़िक और इस चीज़ को, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद एक कुछ अधूरापन महसूस हो रहा था कि उनकी जो शख्सियत थी वो सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थी. उसमें बहुत से ऐसे पहलू थे जो आज भी इतने वर्ष बाद शायद
उनके जो बच्चे हैं, हमारा सबसे बड़ा जुड़ाव एक दूसरे के साथ उसी को याद करते करते हो जाता है। तो इसलिए ऐसा लगा कि उनकी जो 100वीं बर्थडे है, जन्म दिवस है, उसे हम उनके जीवन की कहानी को एक किताब का रूप देकर लोगों के सामने लाएं। तो बहुत देर तक ये सोचती रही कि कौन ये काम कर सकता है। मेरी हिंदी बहुत खिचड़ी वाली हिंदी है, वो आप सुन ही चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगा कि दोनों मिलकर हम कुछ चीज़ों को याद करते करते कुछ बना लेंगे। और भाभी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा भी किया। ये बात नहीं है कि हमारा कभी बैरन सास ननदिया वाली सिनारियो नहीं हुआ। हुआ, कई बार हुआ। लेकिन शायद भाभी होने के नाते वो थोड़ा सा डरती भी हैं मुझसे, तो मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। और पिछले आई थिंक 1.5 साल से हमने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया। और भाभी ने पूरी जान लगा दी और पूरे दिल, पूरे दिमाग के साथ लंबी लंबी डिस्कशंस, मतलब कान गरम हो जाता था हमारा फ़ोन पे बात करते करते। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आज इसका रिज़ल्ट है, जो हमारे हाथ में एक ट्रेजर है, वो आप सब इसे प्लीज़ पढ़िए। क्योंकि बहुत आप लोग जितना भी जानते होंगे पंडित जी के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर इस किताब में मिलेगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि रेखा कुछ शब्द इंट्रोडक्शन के दें और फिर मैं सवाल जवाब शुरू करती हूँ। निर्मल भाभी गजरा के लिए नहीं, हमारे लिए भी निर्मल भाभी हैं, क्योंकि उनसे घर जब जाते थे तो उनसे मिलना होता था। और गुरुजी भी क्लास में बहुत बार, क्लास के बाद भी बातें होती थी या बस स्टॉप तक जाते थे तब भी होती थी। तो निर्मल भाभी की बहुत तारीफ़ करते थे, बातें करते थे, बताते थे कि रेसिपीज़ डिस्कशन होता है और क्या क्या होता रहता है। मित्तू के लिए हर साल वो बर्थडे पे एक कपलेट ज़रूर लिखते थे जो हमसे भी शेयर करते थे। तो वो बड़ी ख़ास बात थी। और तो निर्मल भाभी हमारे लिए भी बहुत स्पेशल रही हैं। आई एम सो हैप्पी कि ये किताब उन्होंने लिखी, क्योंकि उनके साथ सबसे ज़्यादा वक्त, जैसे गजरा ने कहा, उन्होंने ये थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम कर दीजिए ना, ये बहुत ब्लो कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा वक्त निर्मल भाभी के साथ गुजारा। तो बहुत सारी यादें, मैंने भी जब किताब पढ़ी है तो उसमें यही है कि इतनी सारी यादें हैं कि वो जो घर में एकदम साथ उनके रहे, उसको ही वो सौभाग्य मिला होगा कि इतनी बातें तो तभी करेंगे वो। और गजरा, हम लोग कहते हैं हम वी आर सोल सिस्टर्स, गुरु बहनें तो हैं हम, वो एक कनेक्शन है। लेकिन मोर देन दैट, जब ये काम पे जुड़ गए या उससे पहले भी जब भी मिले हैं, तो ये हमारा एक ऐसा मुहिम हो गया, ऐसा एक वो हो गया है कि उसमें सिर्फ ये है कि मुझे गजरा को धीरे धीरे ऐसे पकड़ पकड़ के इधर लाना पड़ता है, इसलिए कि गजरा एकदम बहुत एक्साइट होके इतना कुछ, मतलब उस वक्त मैं भी एक्साइटमेंट में बहुत आइडिया ज़्यादा दे देती हूँ। अब मैंने अपने को संभाल लिया कि नहीं, आइडियाज़ ही मत दो, अपने अंदर रखो सब। इसलिए क्योंकि जब बोल के तो गजरा बोलती है कि हाँ ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी करेंगे, मैं भी कहती हूँ हाँ हाँ हाँ। और गजरा उसके बाद, गजरा तो बहुत मतलब लिखती भी है और एजुकेशनिस्ट है, मतलब एकेडमिक्स में इतनी स्ट्रॉन्ग है। मेरा तो दिमाग आर्टिस्ट वाला है, तो उस वक्त एक्साइटमेंट में बोल देती हूँ, बट प्रैक्टिकली सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फिर गजरा कहती है, जब हम लोग एक कॉल पे बात करते हैं, मैं काफ़ी दिन अवॉइड करती हूँ कि आज भी नहीं, आज भी नहीं। फिर हम जब, क्योंकि मुझे पता होता है 5 मिनट 1 घंटे से कम नहीं होते हमारे, बहुत बातें करते हो। फिर गजरा कहती हैं, गजरा लिख कर के बैठती हैं, तो बहुत काम होते हैं, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। और उस टाइम लगता है कि प्रैक्टिकली इवन विद गजराज वर्क और मेरे काम के साथ भी, और फिर हमारे हेल्थ, सब कुछ चलता रहता है, घर गृहस्थी भी है। गजरा इज़ अ डिवोटेड मदर एंड अ वाइफ एंड अ कुक एज वेल एंड अ फुल टाइम राइटर। तो उसके साथ भी मुश्किल होता है, तो मुझे, हमको ऐसे एक दूसरे को ठंडा करना पड़ता है कि इतना ही करते हैं। जैसे हमें लगा सेंटिनरी है
विल बी एबल टू डू अ लॉट, बट आई थिंक हम रेगुलरली बीमार पड़ रहे हैं बारी बारी से, और उसमें यही लगा हमने वो सब चीज़ों को कम करते गए कि हम क्वार्टरली कुछ कर लें, बिकॉज बेसिकली तो ये सब हमारे लिए ही है। कहीं हमें लगता है कि हमने उतना नहीं किया, तो अब हम चाहते हैं कि वो सब चीज़ें बाहर आएँ। म्यूज़िक उनका बहुत वक्त तक पब्लिकली नहीं आया, उसको हम शेयर करें, लेकिन हर चीज़ करना इस वक्त ज़िंदगी इतनी रफ्तार के साथ गुज़र रही है, पॉसिबल नहीं होता। तो जो हमारी, जैसे गजरा ने कहा, हमारी छोटी सी कैपेसिटी में जितना पॉसिबल है वही कर रहे हैं, और उसमें बुक्स का काम सबसे ज़्यादा हो पा रहा है हमसे, क्योंकि गजरा बीइंग एन ऑथर हरसेल्फ वो जुट जाती हैं इसमें, और अब निर्मल भाभी भी जुड़ गई हैं, और हमारे पास जो हमारा कृष्ण है वो शांतनु राय चौधरी हैं, तो हम उनको पकड़ लेते हैं कि आप ये करिए, एंड ही मेक्स आवर ड्रीम कम ट्रू। बल्कि जल्द ही जो हिंदी की डिक्शनरी हुई है उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी अब आएगा, क्योंकि एक वक्त में यही लगा था कि हिंदी ट्रांसलेशन आएगा डिक्शनरी का तो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक जा सकेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी लिखते पढ़ते हैं नॉर्थ में, या यूनिवर्सिटीज़ में हम ज़्यादा भेज पाएंगे। तो वो भी हमारी कोशिश है कि सेंटेनरी में वो भी रिलीज़ हो जाए। और आई थिंक ये खट्टा मीठा सा इंट्रोडक्शन अच्छा है बहुत, तो अब सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। बात है। सो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल निर्मल भाभी से ये है कि ये जो विचार था कि हमें एक बायोग्राफी लिखनी चाहिए, ये विचार और उस विचार को वास्तविक बनाने का जो सफ़र था, उसमें बहुत सारी स्टेजेस आई होंगी। हमें थोड़ा सा हम अपने गुरुजी के चाहने वालों के साथ ये सफ़र थोड़ा सा शेयर करें कि एग्जैक्टली कैसे ये आइडिया आया, कैसे ये डिसाइड हुआ, और क्या क्या अर्ली स्टेजेस थी इस पूरे प्रोसेस की। नमस्कार। ये आइडिया तो दरअसल बताऊं तो गजरा को ही आया था पहले कि क्योंकि मैं इसके साथ बहुत शेयर करती थी गुरुजी की बातें, उनके जाने के बाद बहुत एक उनकी कमी महसूस होती थी। तो हम दरअसल लंबी लंबी बातें किया करते थे कि क्या मैं उनसे सीखती थी और क्या मेरे एक्सपीरियंसेस उनके साथ थे और कितना हम उनको मिस करते हैं, और मोरोवर हर रोज़ उनकी दी हुई सीख से कितना मैं अपनी लाइफ को इजी बना पा रही हूँ। कुछ बातें तो ऐसी थी जो गजरा के लिए नई थी एकदम, जी, क्योंकि इनकी शादी हो गई थी और मैं पंडित जी के साथ ज़्यादा समय मुझे बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता था। तो इन्होंने ही सजेस्ट किया एक्चुअली कि क्यों ना आप इसको लिखिए। उस वक्त ऐसा नहीं था कि जीवनी ही लिखनी है, कि व्हाई डोंट यू राइट ऑल दीज पॉइंट्स, कहीं ना कहीं काम आएंगे आपके। तो हमने लिखना भी शुरू किया, और फिर इन्होंने ही सजेस्ट किया कि भाई व्हाई डोंट यू राइट हिज बायोग्राफी। तो मेरे लिए ये जो विचार था वो ही बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं संगीत के क्षेत्र से नहीं हूँ, और संगीत के विद्वान, सदी के विद्वान जिनको संगीतज्ञ बोला जाता है, उनके बारे में मैं कैसे लिख पाऊँगी, ये मैं उस वक़्त मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी ये सोचने की भी। फिर गजरा नाराज़ भी हुई मुझसे कि मुझे आप पर भरोसा है, आप लिख पाएंगी, लेकिन मैंने वक्त लिया इसको सोचने के लिए। फिर मुझे लगा कि पंडित जी के कई संगीत के अलावा उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे पहलू हैं जिससे शायद उनके चाहने वाले रूबरू नहीं हुए हैं अभी तक। और मुझे लगा कि पंडित जी जैसे हैं वैसे क्यों हैं, ये उनके चाहने वालों के लिए बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने करीब रहकर मैं समझ पाई उनको
उनके उनके अंतर्मन को मैं समझ पाई कि वो जैसे हैं। लोगों को वो थोड़ा स्ट्रिक्ट लगते थे, थोड़ा कई बार लोग कहते थे ब्लंट भी हैं, एकदम से डांट भी देते हैं, लेकिन मैं उनको समझती थी। मेरे लिए वो एक माँ जैसे पिता थे। और जितना मैं उनको समझ पाई, मुझे लगा क्यों नहीं मैं वो सब पहलू सबके साथ बांटूं। एक तो उनके चाहने वालों को उनका असली व्यक्तित्व पता चलेगा, और दूसरा आने वाली जनरेशन ये समझ पाएगी कि इतने उच्च श्रेणी के कलाकार के निर्माण में उनकी भावनाओं का और उनके संघर्ष का कि क्या भूमिका रहती है। तो उनके सुने सुनाई किस्से और कुछ अपने दिमाग से एनालाइज करके जो मैंने एक कथा पिरोई, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, तो सोचा कि इसको एक कहानी का रूप देती हूँ उनकी जीवनी को। और इसमें काफ़ी वक्त लगा, गजरा ने बहुत साथ दिया, और कई बात चैलेंजिंग एक और बात के लिए भी था कि जब आप किसी व्यक्ति के जीवनी लिखते हैं तो कुछ ऐसे पर्सनल बातें भी होती हैं जो कि आप बहुत बारीकी से उसको लोगों को समझाना भी चाहते हैं, लेकिन आप डिग्निटी भी मेंटेन करना चाहते हैं रिश्ते की। तो उन सब का ध्यान रखते हुए कई बार हम कहीं बातों में कहीं किसी जगह अटक भी जाते थे, तो गजरा का सहारा लेती थी और फिर हम डिस्कशन करके उसका कुछ तोड़ निकालते थे। और ऑन द होल ये पूरा सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। और मुझे एक बात का खुशी हुई कि ये जब 10-11 महीने मुझे लगे इसको लिखने में, मुझे लगा कि मैं पंडित जी के साथ, अपने पिता के साथ दोबारा जी रही हूँ। आई रीलिव्ड दोज मोमेंट्स, ब्यूटीफुल मोमेंट्स। और हर रोज़ जब लिखती थी तो लगता था कि उनसे बातचीत हो रही है मेरी। वो सब चित्र मेरे सामने आते थे। कभी मैं अकेले बैठ के हंसती थी, कभी रोती थी वो लिखने के दौरान। तो मुझे आशा है कि सब लोगों को मज़ा आएगा ये पढ़कर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच निर्मल भाभी। तो ये किताब, ये बायोग्राफी जो है, ये यादों से शुरू हुई और कहानी बन गई। तो जहाँ तक यादों का सवाल है रेखा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जितना मुझे पता है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और बहुत अच्छा कर रही थी। मतलब बहुत सी इंटरव्यूज़ में मैंने विशाल से सुना है कि हाउ यू वर मच वूड बिकॉज सो मेनी पीपल वांटेड टू बी विथ यू बिकॉज ऑफ योर म्यूज़िक, बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, योर अमेजिंग वॉइस राइट फ्रॉम देन। तो इतना बढ़िया, मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्या था आपके गुरुजी की शख्सियत में कि आपको लगा कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के अलावा व्हाट इज़ इट दैट ड्रू यू टू हिम एंड यू फेल्ट कि नहीं, मुझे इनसे सीखना है। तो वो थोड़ी सी जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। तो अब मैं जब देखती हूँ तो मैंने गुरुजी का पहला प्रोग्राम सुना था जब मैं 8 साल की थी, ऐवान गालिब में जी। मुझे वो इमेज मतलब मेरे एकदम दिलो दिमाग पे छपी हुई है। गुरुजी ऐसे हाथ स्टेज पर रखकर बैठ के गा रहे थे, और उसके बाद कोई उस वक्त कोई उसकी याद नहीं थी उस बात की। बट व्हेन यू लुक बैक के जब स्पिरिचुअल जर्नी में भी कैसे आप मास्टर से मिलते हैं तो आप सब पीछे यू ट्रैवल बैक। उसके बाद गुरुजी से मुलाकात हुई, दूरदर्शन का एक कंपटीशन था। हाँ, वो वॉल्यूम का कुछ है उस वजह से नहीं, इसमें भी है, आएगा इसमें भी, बिकॉज द सेम माइक, वही ले लेती हूँ। तो फिर दूरदर्शन का एक, ये आप कुछ कर सकते हैं इसका भप भप जो आ रहा है, हाँ इसको कट करिए ना, कुछ इसका हाईज वगैरह या लोज कुछ कट करिए। तो दूरदर्शन का एक कंपटीशन था गज़ल्स, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक का। तो मैं उसमें गज़ल गाने गई थी और उसके कुछ 3 राउंड्स थे एंड देन आई केम सेकंड इन दैट। तो गुरुजी पहले राउंड से थे। तो मेरा
इंट्रोडक्शन गुरुजी से गज़ल के ज़रिए हुआ। मैंने भटियार में एक गज़ल थी जो गाई थी, मेरे अंकल की कॉम्पोजिशन, और वो हमेशा उनकी आंखों में एक चमक आती थी, मुस्कुराते थे, और हर बार जब बाद में मिलते थे तो बोलते थे कि खाया करो चुईया जैसी हो। तो उसके बाद 12th में हम मंडी हाउस जाते थे प्लेस करने, और मुझे बड़ी शर्म आती थी कि हम किसी को नमस्ते करते थे, कोई बड़े हैं, और अगर वो देखते नहीं हैं और इग्नोर हो जाती है वो नमस्ते, तो आप शर्म में अपने दोस्त वगैरह में ऐसे करते हो एक्ट कि आपने मतलब कुछ किया ही नहीं। उस वक्त बहुत बड़ी हम डेलिकेट उससे गुजरते हैं। तो गुरुजी मतलब आ रहे होते थे भारतीय कला केंद्र या उधर से जा रहे होते थे, और मैं रविंद्र भवन के उधर से निकलती थी। तो कुछ ऐसा होता था, क्योंकि शायद मेरी एक वाकफियत थी उनसे दूरदर्शन के कंपटीशन के वजह से, तो मुझे पता था कि उनको मतलब वो प्यार करते थे, तो मैं उनको ऐसे नमस्ते करती थी और वो हमेशा एक्नॉलेज करते थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर मेरे गुरु भाई देवासेन गुप्ता जो मेरे कॉलेज उस कंपटीशन में भी थे, एंड ही हैड कम 3rd इन स्पाइट ऑफ बीइंग गुरुजी स्टूडेंट। तो बाद में गुरुजी उनकी बात भी करते थे, और तो मैं उनसे कहती थी कि बात कर लो गुरुजी से और मुझे सीखने आना है। तो हर बार मुझे टरका देता था कि आज भी बात नहीं हुई, आज भी बात नहीं हुई। और जब फाइनली एक दिन, मैं पहले गंधर्व महाविद्यालय में सीखती थी, मैंने करीब 76 से 82 में गुरुजी के पास गई थी, और मुझे ये पता था कि गुरुजी थोड़े सीखे हुए स्टूडेंट्स को लेते हैं, एकदम बेसिक लेवल पे स्टूडेंट्स को नहीं लेते हैं। तो कहीं शायद वो दिमाग में बात थी। और एक दिन मेरे पापा ने कहा कि तुम रियाज वगैरह तो करती नहीं हो, तुम छोड़ दो यहाँ जाना विद्यालय और सब छोड़ो। तो फिर मैं उस दिन मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मैं बाहर आके और सीधा भारतीय कला केंद्र गई, फॉर्म लिया, फॉर्म भरा और पता करके क्लास में चली गई। और क्लास ख़त्म हुई गुरुजी की, बैठी थी, तो फिर गुरुजी ऑब्वियसली पहचान गए। उन्होंने पूछा क्या है, तो क्या काम है, तो मैंने कहा मुझे सीखना है। तो मैं पूछा लास्ट स्टूडेंट ने जो गाया था क्या गाया, तो बताया राग। फिर बोले गा सकती हो, तो मैं कहा मैं कोशिश कर सकती हूँ। कम स्पीड में वो तान गाई, खुश हुए। फिर फॉर्म लिया। तब तक मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था जुलाई में, और नवंबर की बात है। फिर उन्होंने कहा कि अभी क्या कर रही हो, कॉलेज में हो, अच्छा छोड़ो ग्रेजुएशन कर लो फिर करना, बट आई वांटेड टू लर्न। फिर उन्होंने कहा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था खाओ। तो यूनिवर्सिटी वाज जस्ट फॉर द रीज़न के मुझे वहाँ डिग्री लेने के लिए जाना था। मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था, और भाई जी ने एक्चुअली विद्यालय में मुझे इंसिस्ट किया कि तुम यूनिवर्सिटी में सीखो, सो दैट यू कैन स्पेंड ऑल योर टाइम ऑन म्यूज़िक। सो बेसिक आइडिया वो था। पर जब यूनिवर्सिटी में जाके हुआ कि 10 या 12 लेक्चरर्स हैं, अगर 10 राग आपके कोर्स में है तो 10 डिफरेंट लेक्चरर्स आपको सिखाते हैं। सो सबके अपने स्टाइल हैं। तो मैं तो बहुत ही कम क्लासेस तो नहीं अटेंड करती थी, सिर्फ LK पंडित सर की क्लास अटेंड करती थी, मुझे उनका गाना पसंद था। और बाकी टाइम कैंटीन में रहती थी। और मैंने कभी ये छुपाया नहीं था कि मैं पहले विद्यालय में सीख रही थी, और जब गुरुजी के पास सीखती थी तो गुरुजी के पास सीख रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं कोई डर नहीं था, मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ। और आई थिंक कहीं वो चीज़ गुरुजी से ही वो कॉन्फिडेंस मैं कहूँगी था शुरू से, तो इसलिए वो चीज़ छुपानी नहीं पड़ी। और क्योंकि एक घरानेदार गायकी सीखनी थी, गुरुजी का स्टाइल पसंद था, तो वो सीखना ही था। और आई थिंक इट वाज मेंट टू बी, इट वाज डेस्टिन्ड कि गुरुजी से ही सीखना होगा वो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और कोई मुझे भी समझ सकता था, क्योंकि अब ये किताब पढ़ी तो वो और कनेक्शन समझ आता है कि वो जितने फ्रजाइल थे, जितने कोमल थे, तो समवेयर आई थिंक ही अंडरस्टूड दैट। मैंने निशा जी से बहुत बार कहा कि मुझे गुरुजी ने कभी डांटा क्यों नहीं, वो डांट देते तो शायद मैं ज़्यादा रियाज कर लेती। और वो यही समझ आया कि उन्हें पता था कहीं कि शायद वो एक भी डांट लगाते तो मैं शायद बंद हो जाती या
काफ़ी दिनों के लिए आना बंद कर देती। मुझे भी कभी डांटने लगाते थे इसीलिए। हाँ, तो बहुत बहुत प्यार करते थे और मेरी सारी बकबक को झेलते थे। मतलब मुंह खुलता था तो सिर्फ बहुत ही बेकार बातें करती थी मैं, तो बस उनका यही होता था कि इसके सर पे सारे दुनिया का बोझ लिया हुआ है। और गाने में बहुत इनकरेज करते थे कि मैं आके यूनिवर्सिटी की भी बातें उनसे करती थी जो मुझे बॉदर करती थी या जो भी था, और हर चीज़ का उनके पास समाधान था। और बहुत खूबसूरती से कभी वो क्रिटिसिज्म में नहीं जाते थे, बट वो सॉल्यूशन की तरफ जाते थे। और हमको 15 मिनट ही मिलते थे इंडिविजुअली उनसे सीखने के लिए, लेकिन हमको हमेशा अनुमति थी कि हम क्लास में 9:30 अगर वो आ जाते हैं 9:30 पहुँच सकते हैं, 10 बजे पहुँच सकते हैं और अपनी बारी से क्लास में सीखेंगे, लेकिन उसके अलावा हम पूरी क्लास में बैठ के सुन सकते हैं। और उस वक्त सबसे ज़्यादा लर्निंग होती थी। और उनके जो कुछ और वो हमको गुर देते थे कि अपनी गांठों को या हमारी जो अपनी कमी है उसको कैसे पहचानना है और उसको कैसे सुलझाना है। इस तरह उन्होंने हमें तैयार किया रादर देन स्पून फीडिंग। और किसी स्टूडेंट को जब बताते थे तो वो सुनते सुनते हम और सीखते थे, क्योंकि कई बार होता है जब हमें सिखा रहे हैं तो वो बात कम समझ आएगी, पर दूसरे को बता रहे हैं तो एकदम आपको समझ आती है एज अ ऑडियंस या एज अ स्पेक्टेटर। लिसनर वेरी इम्पोर्टेंट, एज इम्पोर्टेंट एज। और बहुत एनकरेज करते थे हमेशा के गाते हुए रोना आ गया तो फिर बाद में पूछा क्यों, और फिर बोलते थे कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, रोना एक बहुत अच्छा साइन है। तो वो बंदिश थी कोमल ऋषभ आसावरी में। प्लीज़ हमें थोड़ी तो मैं वो हाँ सुनाती हूँ। सुनाइए। और तो सुबह क्लास होती थी तो मोस्टली सुबह के राग ज़्यादा सीखे, और ये था कि माइनर स्केल्स जो कोमल सुरों वाले राग मुझे बहुत पसंद थे और वही राग ज़्यादा सीखे। इससे पहले मैं एक भैरव में सुनाना चाहूँगी, क्योंकि भैरव सबसे पहले सीखा और उसमें फिर एक सीरीज़ ऑफ पलटे गुरुजी देते थे और उन्हीं से सिखा दिया सब कुछ के जब अपनी समझ बनी और रियाज़ किया। तो अभी जैसे निर्मल भाभी ने कहा एग्जैक्टली वही होता है कि उनकी आवाज़ आने लगती है जब भी बैठते हैं रियाज़ के लिए, और वो याद आने लगती हैं चीज़ें जो भूल गई हैं कि कैसे इसको कैसे सहल करना है या इसको ठहरना कैसे है, ये बात क्यों अटक रही है। तो भैरव में जो मध्य लय है वो मेरा बहुत बहुत पसंदीदा बंदिश है, क्योंकि उसमें इतनी खूबसूरत लाइन है। और अब जब मैं देखती हूँ, समझती हूँ, पढ़ती हूँ उनकी बंदिशें और वो लफ्ज़ों का ज़्यादा और मायने खुलते हैं अपने ज़िंदगी के अनुभव से, तो ये लगता है कि इसमें भी अभी वो बोल रहे थे इंटरव्यू में कि भक्ति रस की बात कर रहे थे और कि श्रृंगार रस में भी आके भक्ति पे टिकता है। तो एवरीथिंग बेसिकली टेक्स यू टुवर्ड्स दैट, भक्ति की तरफ, डिवोशन की तरफ। तो इसमें बड़ी खूबसूरत लाइन है कि दरिद्र दुख भंजन विद्या है रसखान, महाज्ञानी गुरु की सेवा तू कर रे। मैं बहुत उसमें नहीं जा रही हूँ, सिर्फ बंदिश ही गा रही हूँ। दरिद्र दुख भंजन दरिद्र दुख भंजन विद्या
रस खान महाज्ञानी गुरु के सेवा तू कराने दरिद्र दुख भंजन वेदा है रस खान महाज्ञानी गुरु के सेवा तू कराने दरिद्र दुख भंजन है मगमा रे सा। मुझे लगता है मुझे भक्ति करना भी उनसे ही आया, शायद शुरुआत वहाँ से वहीं हुई से होगी। शुरुआत जी जी जी। मेरा अगला सवाल है निर्मल भाभी से, और ये जो किताब है, ये जो बायोग्राफी है, इसमें एक सबटाइटल है जो कहती है संगीत नामा, माँ से सुर का नाता। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हम सबके साथ ये शेयर करें कि इस सबटाइटल के पीछे की कहानी क्या है, माँ से सुर का आखिर क्या नाता है। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब किसी न किसी बात पर वो माँ का जिक्र नहीं करते जी। और सबसे जो मुझे दुखद बात ये लगती थी कि वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे अपनी माँ की छवि तक याद नहीं। वो हमेशा इमेजिन करते थे कि क्या मेरी माँ ऐसी होंगी, क्या मेरी माँ वैसी होंगी, और बात करते करते कई बार भावुक भी हो जाते थे कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी माँ को कौन सा रंग पसंद था, मेरी माँ को क्या खाना पसंद था। और ये एक्चुअली एक बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं शेयर करूं तो बड़ा अजीब लगता है कि आप अपने फादर को, हर बच्चा अपने माँ या बाप को बहुत पावरफुल परसीव करता है, तो अपने फादर को रोते हुए देख उनकी माँ के लिए एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है, और बहुत साल और बहुत समय लगता है उस फीलिंग को एक्चुअली समझने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे जब बच्चे हुए तो मुझे एक्चुअली, अगर मैं उससे पहले कोशिश करती थी समझने की, लेकिन कभी कभी ये महसूस होता था कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन माँ बनने के बाद वो 100 में 100 समझ में आने लगा। सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे भी तभी समझ आया जब मैं माँ बनी, क्योंकि उन्होंने बोला कि सब काम एक तरफ, सिर्फ बच्चे को आपको देखना है। रेखा को शायद याद होगा, रेखा के साथ भी उन्होंने शेयर किया था ये बात कि उस वक्त थोड़ा मन करता था कि मैं भी नौकरी करूं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं देख नहीं सकता कि बच्चा रोता है। तो वो बच्चे, वो माँ के लिए और माँ और बच्चे के लिए भी उनके सिमिलर फीलिंग्स थी। तो ये धीरे धीरे समझ में आया कि माँ से सुर का उनका नाता कैसे है, वो मैंने किताब में भी मेंशन किया है। और तो इसीलिए मैंने किताब में जो उसका सब टाइटल है वो माँ से सुर का नाता लिखा है। जी, बहुत खूबसूरत है। जी, आप उसको थोड़ा पढ़ सकती हैं।
एक्चुअली मैं चाहूँगी 1.5 पेज कुछ पढ़ना, क्योंकि ये उस पल को सजीव करता है जब ये माँ से सुर का उनका नाता बना। ये उस पल को लेकर जो एक सीन बनता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। लिखा आपने पढ़ी हो? कैसी लगी? सच में फिर एक सुबह हमने हर चैप्टर को एक टाइटल दी है, और ये पहला चैप्टर है जिसकी टाइटल है नन्हे कदम लंबा सफ़र। तो ये लंबा सफ़र जिन नन्हे कदमों से शुरू हुआ, ये पैसेज उस चीज़ को दर्शाता है। फिर एक सुबह ऐसी भी आई जब नाथ सोकर उठा तो उसे घर पर रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दीं। घर पर लगी लोगों की भीड़ और आवाज़ें सुनकर बिना कोई कारण जाने नाथ भी रोने लगा। दादी बुआ ने जल्दी से पिछले दरवाजे से उसे पड़ोसी के घर भिजवा दिया। कुछ घंटे बाद जब नाथ को घर वापस लाया गया तो माँ की चारपाई खाली देख वह घबराकर रोने लगा। माँ कित्थे गई? नाथ भागकर रोते हुए हर कमरे में माँ को ढूंढने लगा। अलमारी के अंदर, बिस्तर के नीचे, पर्दों के पीछे, हर उस जगह जहाँ तक उस छोटे से नाथ की पहुँच थी, पर उसे माँ कहीं नहीं मिली। नाथ जाकर माँ की चारपाई पर लेट गया। रोते रोते उसके हाथ चारपाई की बाण पर फिरने लगे। अचानक नाथ को उस बाण में से अद्भुत से स्वर सुनाई देने लगे। उसने दोबारा सुतलियों को उंगलियों से छेड़ा, फिर वही सुरीले स्वर। मासूम को उन स्वरों से ऐसा सुकून मिला जैसे माँ की गोद में लेटकर उनसे लोरी सुनने से मिलता था। फिर क्या था? नाथ की उंगलियां बिना रुके माँ की चारपाई की बाण के साथ खेलती रहीं। हिलती सुतलियों से निकले स्वर उसको ऐसे सहलाते रहे कि कुछ ही देर में उस मासूम के आंसू गिरने भी बंद हो गए। माँ की चारपाई से उपजे संगीत के स्वरों के साथ अमरनाथ का ये पहला परिचय उनके लिए जीवन भर यादगार बना रहा। उस अद्भुत सुरीले संगीत से मिले सुकून ने नाथ को लोरी बनकर कब सुला दिया उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब नाथ की आंख खुली तो उसने अपने कमरे के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। वह जल्दी से बरामदे की ओर भागा। शायद माँ की चारपाई पर लेटना चाहता था। पिछले दिन संगीत से हुए परिचय से फिर से महसूस करना चाहता था। पर यह क्या, अब माँ की वही चारपाई उसे कहीं नजर ही नहीं आई। नाथ विचलित हो उठा। पूरे घर में भागकर चारपाई को ढूंढने लगा, पर उसे न माँ दिखी और ना ही माँ की चारपाई। नाथ जोर जोर से रोने लगा। पिताजी ने आकर उसे गोद में उठा लिया। नाथ चिल्लाने लगा, मेरी माँ कित्थे गई? ओदी मंजी कित्थे गई? पिताजी ने नन्हे नाथ को अपनी छाती से चिपका लिया और बिलक बिलक कर रोते हुए बोले, रब कोल चली गई तेरी माँ, कल्ले छोड़ गई सानू। किधरे नहीं जाने जा सकती मेरी माँ दी मंजी कित्थे? माँ दी आवाज़ सुनी है मैंने, मंजी विच। नाथ रोते हुए बोला। पिता असहाय से पुत्र की पीठ सहलाते रहे। कैसे समझाते उसे कि मरने वाले के बिस्तर और चारपाई को घर से बाहर कर दिया जाता है, खासकर जब किसी व्यक्ति के प्राण बिस्तर पर ही निकल गए हों। माँ नहीं रही। उनके छोटे से जीवन का सफ़र हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। ये थीं अमरनाथ की सबसे पुरानी यादें। पर माँ के चले जाने के बाद भी नन्हे से नाथ ने अपनी माँ से मिलन की उम्मीद नहीं छोड़ी। माँ की चारपाई से निकले संगीत को उन्होंने हमेशा के लिए अपने अंतर मन में ऐसा बसा लिया मानो माँ ने अपने बेटे को संगीत और सुरों के हवाले कर दिया हो। क्या सुरों के ज़रिए अपनी माँ के प्यार और माँ का प्यार फिर से पा सकेगा नाथ?
जानने के लिए, जैसे हमारे सीरियल्स में कहते हैं, जानने के लिए पढ़िए ये किताब। सवालों का सफ़र आगे ले जाते हुए मैं चाहूँगी कि रेखा आप हमें अपनी कुछ और यादों से जोड़ें कि ऐसी क्या ख़ास चीज़ें थीं जो आपने उनसे सीखी, क्योंकि हमने अभी जिक्र किया कि माँ और कला वो कैसे एक तरह से जुड़ गए दोनों, और एक ने दूसरे पर एक ऐसा असर किया जो जीवन भर के लिए हमें ऐसी यादें देकर चला गया। तो ये जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता जिसे अगर हम कहेंगे, तो वो उनकी अपनी बंदिशों में बहुत रिफ्लेक्ट होती थी जो वो खुद क्रिएट करते थे। ही वॉज अ कंप्लीट क्रिएटर और कंप्लीटली क्रिएटिव। और मुझे पर्सनली ये याद है कि संगीत से न सही, लेकिन जहाँ तक लिरिक्स और जहाँ तक पोइट्री और जहाँ तक कहानियों का शब्दों का एक की इम्पोर्टेंस जो है वो उन्होंने मुझे बहुत कूट कूट कर समझाई, और उसकी वजह से मुझे ऐसा प्यार हुआ एक अलग तरह की क्रिएटिविटी से कि वो आज तक मेरे साथ हर कदम पर है। तो उनकी जो क्रिएट की हुई बंदिशें हैं उनमें से आप हमें कुछ सुनाएं जो आप आज भी गाती हैं या याद करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं। दैट वुड बी लवली। इनफैक्ट गुरुजी लेक्चर डेमॉन्स्ट्रेशन करते थे स्पेशली जी, इम्पोर्टेंस ऑफ लिरिक्स इन क्लासिकल म्यूज़िक एज वेल। जी, ठुमरी गज़ल ये तो है ही शब्द प्रधान, लेकिन क्लासिकल में ज़्यादातर लोगों को लगता था, या शायद अभी भी कई बार लगता है ऐसा, कि उसमें लिरिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन चाहे 2 पंक्तियों की बंदिश हो स्थाई, लेकिन भाव के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि वो एक लफ्ज़ लेकर भी जब आप उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं, आलाप करते हैं, एंड आई थिंक दैट बिकम्स योर स्टेयर केस टू गोइंग इन दैट बियॉन्ड, और दैट लैडर टू गो बियॉन्ड। और जो हम बात करते हैं कि सबको एलिवेट करके आर्टिस्ट एक दूसरे रियाल्म में ले जाता है, तो वो कोई एक लफ्ज़ तो चाहिए भाव के लिए, अनलेस इट्स एन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। तो गुरुजी की अपनी बंदिशों में तो बहुत ही था। उनका मुझे पेन नेम भी बहुत पसंद है। एक ये रागेश्वरी भी मेरा बहुत पेन नेम के favorite बारे में है। बताइए, क्या था हमारी ऑडियंस के लिए? पेन नेम गुरुजी का मितुरंग जी है। तो उनका पोता है, उसका घर का नाम जो एक पंजाबियों में बड़ी इरिटेटिंग हैबिट होती है, सबको मम्मू पप्पू चप्पू बुला लेते हैं पर हम उसे मित्तू बुलाते थे। तो इतना प्यार करते थे अपने पोते से कि उन्होंने अपना पेन नेम मितुरंग रख दिया। अच्छा, ये बात नहीं पता थी, क्या बात है। जी, ये पता था कबीर से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि कबीर क्लास भी में- नाम उन्होंने ही दिया था। हाँ, और मित्तू भी नाम, हाँ, कि वो मेरा हाँ, मीत मित्तू, है, हाँ। वो मेरा दोस्त है। और कबीर की भी बहुत बातें होती थी। गुरुजी का ये भी एक आयाम था कि ऐसा नहीं था कि बस कट टू कट एक क्लास की और उसके बाद छुट्टी जाइए आप। जी, मतलब वो बात करते थे, किताबों की बात करते थे, फ़िलॉसफ़ी और ज़िंदगी की बात करते थे, पोइट्री की बात करते थे। तो वो आई थिंक कहीं हमारे लिए भी वो पूरा एक ओवरऑल जो आपको मिलना चाहिए। निशा जी यहाँ बैठी हुई हैं, निशा जी सालों से इस बात पे काम कर रही हैं, और इसलिए आई थिंक निशा जी और गुरुजी का एक अलग रिश्ता रहा है, उस वजह से कि एक होलिस्टिक जो आर्टिस्ट या होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हमारा आर्टिस्ट के लिए स्पेशली, क्योंकि वो डिफरेंट उसमें जाते रहते हैं। तो वो गुरुजी ने हमें वो बारे में रियलाइज़ कराए बिना उन्होंने हमको वो सारी बातें भी सिखाई। जी, तो ये उनका द्रुत बंदिश है। पहले मैं इसके लफ्ज़ पढ़ देती हूँ। चैन ढूंढे जोगी चैन नहीं पाए, चैन ढूंढे जोगी चैन ना ही पाए, मन में जो राम बसे काहे ना रिझाए। वाह। आलम में चैन कहाँ राम जहाँ चैन वहाँ,
मन के मितु अंग लागे परम सुख पाए। और बंदिशों में भी है उनका पेन नेम, कुछ में जी, आई थिंक कई बहुत। बार नहीं भी लगाते थे। मैं वो देख रही थी कि कौशिक रंजनी की बंदिश में जो तुमने मुझे दिया है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसमें वो नाम नहीं है, पर 85 के ये प्री और पोस्ट मितू हाँ बाद में वाला सिलसिला है। लगाना शुरू किया तो ये देरता चैन ढूंढे जोगी चैन नाही पाए, मन में जो राम रवे काहे ना रिझाए। उनकी द्रुत बंदिशें ज़्यादातर द्रुत एक ताल में भी थी। उनकी बड़ी फेवरेट ताल रही वो द्रुत बंदिशों में भी, और जो उनका तान लगाने का भी एक ख़ास तरीका था बंदिशों में। चैन ढूंढे जोगी चैन नाही पाए, मन में जो राम रवे काहे ना रिझाए। चैन ढूंढे जोगी चैन ढूंढे जोगी, आलम में चैन कहाँ, आलम में चैन कहाँ, राम जहाँ चैन वहाँ। मन के में तो अंग लागे परम सुख पाए। चैन ढूंढे जोगी चैन नाही पाए। क्या बात। थैंक यू। और मैं एक नहीं, सुनाती मतलब हूँ। किसी का पेट नहीं भरा यहाँ पर। तो जो मैंने पहले बात की थी कोमल ऋषभ आसावरी की बंदिश है, स्थाई ही सुनाऊंगी सिर्फ। और उसमें एक जगह गुरुजी ने ली थी, मतलब मेरी तो आज तक ठीक नहीं आती, पर मैं धीरे धीरे करके वो गा लूँगी। जब मैं रोती रही, और सबसे अच्छी बात जब याद करके मुझे लगता है हम दोस्तियों में भी करते हैं, फ्रेंड्स में, हम शौक है अगर रोते हैं ना तो हम चुप कर आने लगते हैं, अरे कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा बिना जाने भी जी, या कि क्यों मत रो जी, बट क्यों ना रोएं, हाँ, एक्चुअली मुझे क्यों अच्छा ना लगा रोएं। कि ही लेट मी क्राई, कि अच्छा है निकल जाएगा, बिकॉज उन्हें पता था रो के हल्का हो जाए मन। और बहुत बार होता था, मैं यूनिवर्सिटी से भी आती थी जब शाम को क्लास होती थी उनकी, तो शुरू में जब सीखती थी तो शाम को क्लास होती थी, और वो बोलते थे कि दरवाजे से जब आप एंटर करते हो तो मुझे पता होता है कि आप क्या खा के आए हो, किस स्थिति में आए हो, मनस्थिति में। बिल्कुल, तो फिर उस जिसे हिसाब हम से आज की भाषा में वाइब्स कहते हैं। वाइस कहते हैं, ठीक है जी, तो वो पूछ लेते थे कुछ ऐसा, और फिर बस झड़ी लग जाती थी, रोने देते थे। तो उस दिन भी जब ये बंदिश के वक्त उन्होंने कहा फिर कि बहुत अच्छा साइन है, तो गाना सुन के रोना आए बहुत अच्छी बात है। जी। और एक्चुअली जीवन में भी वो कहते थे कि गुबार है निकाल दो, निकाल दो, उसे अंदर मत भरे रहने दो। हाँ, और इसलिए अच्छी बात है कि गुरुजी आई थिंक वाज द फर्स्ट मैन आई सॉ Yeah, लाइक हु I कुड mean, क्राई, Who could cry? जो बड़ी अच्छी बात है। जी, नहीं तो हम बोलते हैं ना कि रोना it's very healthy today. Yeah. They say it's good, मतलब whether you're a man or a woman, but what's wrong with crying? हाँ,
तो ये कोमल ऋषभ आसावरी में है बंदिश। तेरे नाता देखे पल पल छेन छेन गेन गेना देखे अब दिन जात हैं पिया बिना देखे अब दिन जात पिया बिना देखे। तो ये जो जगह है, तो इसकी जो टाइमिंग थी वो ताल के साथ आज मेरे गले से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो देखे पल पल, इट्स लाइक कि वो मतलब आई कैन रिकग्नाइज दैट इमोशन नाउ कि वो कैसे वो उमड़ता है ना, अंदर का जो हॉल उठता है, तो पूरा ठहराव के साथ चल रहा है, वो समंदर के ऊपर ठहरा हुआ है और अंदर जो उथल पुथल है। तो वो इस जगह में मुझे ऐसे लगता है कि बिना देखे पिया को, पिया बिना देखे पल। तो पूरी अरज तो हो रही है बड़े आराम से, बहुत सुकून से वो अर्ज की जा रही है, बहुत रिक्वेस्ट के साथ, लेकिन फिर लगा होगा उनके ये विचलन भी दिखानी ज़रूरी है। और वो उस जगह में आई तो ये हमारे गुरुजी थे हैं, और मुझे लगता है कि आई फील सो फॉर्चुनेट। मेरी तो उम्र भी नहीं थी, मुझे अब इस उम्र में वो रिलेशनशिप्स संभालनी आई है, और मैं इतना मिस करती हूँ कि अब होते तो उस लेवल पे कॉन्वर्सेशन भी होती, क्योंकि महसूस ही होती थी चीज़ें, पर बात करनी तो नहीं आती थी उस टाइम। तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम लगता है कि कितना ब्लेसिंग मिली। और उनकी जब भी वो ध्यान लगा के बैठो रियाज करने, तो उनकी प्रेजेंस फील होती है। एंड देन अमरजीत दीदी के साथ सीखना कंटिन्यू कर सकी उनके बाद, और उनकी बातचीत, हाव भाव, आवाज़ में भी मुझे गुरुजी की बहुत छवि मिलती है। लेकिन अब वो स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं तो उनके साथ मुलाकात बहुत कम होती है, लेकिन मौका जब भी लगा बैठे हैं और गुरुजी की बंदिशें, और वो उसी अंदाज में उनका कहना आ हा महाराज तो वो एकदम गुरुजी की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और 18 साल की उम्र में उनका साथ मिला, और वो अपने लेवल पे रहते हुए हमको वो सहारा देना कि थोड़ा तुम एलिवेट भी हो और चीज़ों को उस लेवल पे खुलासा भी करना।
बिकॉज ही न्यू कि 18 साल की उम्र में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी, कि एक रोमांस भी आता है, आपके दिल भी टूटते हैं, आपकी अपनी एक स्ट्रगल भी है, आइडेंटिटी बन रही है, आप दुनिया में एज एन एडल्ट आप एंटर करते हैं तो कितनी स्ट्रगल है, बिकॉज ही हिमसेल्फ वेंट थ्रू सो मच। सो नो, इनफैक्ट ये जो उनमें एक जिज्ञासा होती थी हमेशा कि अपने से कहीं छोटे बच्चों की, मतलब, और मैं क्योंकि सबसे छोटी थी घर में तो काफ़ी उम्र का अंतर था। तो मुझे याद है कि मैं स्कूल से जब आती थी तो उनमें बहुत एक उत्सुकता होती थी जानने की कि आजकल क्या चल रहा है, मुझे कुछ बताओ। और इंग्लिश की किताबें बहुत पढ़ते थे, हिंदी तो पढ़ते ही थे पर इंग्लिश की भी किताबें पढ़ते थे। और एक बड़ा ह्यूमरस इंसिडेंट जो थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है, तो दिल्ली की सर्दियों में हम लोग रज़ाई के 2 कोनों में बैठकर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। और उनकी आदत थी तो डिक्शनरी थोड़ी सी दूर पड़ी रहती थी, और इतनी सर्दी के कौन जाए डिक्शनरी निकाले, और इंटरनेट के तो दिन थे नहीं। और उन दिनों क्या हुआ, वो मुझसे मीनिंग्स पूछते थे कि अच्छा इसका मीनिंग बताओ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसे मुझे लगता था कि जैसे मेरी क्लास का कोई लड़का या लड़की साथ में, उन गप्पें हमारी चल रही हैं, थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी चल रही है, लड़ाई भी चल रही है। तो एक बार उन्होंने कोई लाइन पढ़ी तो उन्होंने मुझसे, पहले तो हम दोनों में ये बातचीत हुई कि कौन जाए डिक्शनरी वहाँ से निकाले, क्योंकि ठंड बहुत थी, रज़ाई वॉज वेरी कोजी। तो फिर उसके बाद वो पोस्टपोन होता रहा एंड ही सेड कि बेटा ये सिडक्ट का मीनिंग क्या होता है? तो मतलब मैं आई जस्ट इमीडिएटली darted out of the रज़ाई and I got the dictionary and I handed it to him because it was very difficult for me to explain to my father कि seduct का मीनिंग क्या होता है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने इसीलिए कहा कि इस बहाने उठ के एकदम चली जाएगी। He was that एंड मतलब उनके अंदर का जो बच्चा था वो मतलब कुछ कमाल ही था। मेरी रिलेशनशिप, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं नाती पोती की एज की हूँ। तो हमारा एक जो मैंने जिक्र किया भी है, हमारा एक वी वर अ गैंग बिकॉज एवरी फ्राइडे मेरी ज़िद होती थी कि लेटेस्ट अमिताभ बच्चन मूवी जो है वो हमें साथ में देखनी है। और जो रीगल सिनेमा के ओनर थे वो उनके शिष्य थे, तो अगर वो फिल्म रीगल में आ जाती थी तब तो लॉटरी निकल गई, वरना उन दूसरी जगहों में तो उनकी पहचान थी नहीं। तो मैं ऐसा नाराज़ होती थी उनसे अगर वो मैनेज नहीं कर पाते थे। तो मुझे लगता है आई गॉट अवे विथ सो मैनी थिंग्स विच नो वन कैन इमेजिन कि उनके साथ जो मेरा रिश्ता था। एक और शो है जो हम देखा करते थे, ओल्ड फॉक्स, हाँ। और मेरे सबसे ज़्यादा उनके साथ नाराज़गी तब होती थी क्योंकि एक तो मैं ही नहीं समझ पा रही, उन दिनों क्रैकलिंग दूरदर्शन ट्रांसमिशन में वो ठीक से सुनाई भी नहीं देता था, और डिटेक्टिव शो था तो आप एक आध लाइन भी इधर उधर मिस कर जाएंगे तो आपको आगे का फिर समझ में आएगा नहीं। तो वो मुझे डिस्टर्ब करते थे, मैं उन्हें डांट देती थी और बाद में I used to feel very bad about it, but I actually miss all of that, really miss all of that. भाभी कोई और memories जो आप share करना चाहेंगी, especially because of the book that you have written? जी। हाँ गजरा, मुझे एक बात उनकी बहुत याद आती है और जिसका मैंने जिक्र अपनी किताब में भी किया है कि उनका माई हीर की मज़ार के साथ क्या रिश्ता था और कैसे माई हीर की मज़ार पर जाकर उन्होंने वो सूफिज़म से इन्फ्लुएंस्ड हुए। मुझे उस वक्त सूफिज़म का मतलब भी नहीं पता था, वो उन्होंने ही समझाया मुझे। लेकिन वो बताते थे कि जब वो
छः सात साल के थे तो उनके जहाँ वो रहते थे ग्वाल मंडी में लाहौर के पास, वहाँ पीछे ही उनके माई हीर का मज़ार था। तो वो बहुत ज़िद करते थे वहाँ जाने के लिए क्योंकि भीड़ भी लगी रहती थी। तो एक बार उनके पिताजी उनको ले गए वहाँ पर और उन्होंने पूछा भी कि ये माई हीर क्या है। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या बच्चे को क्या बताऊं कि ये हीर रांझा की लव स्टोरी है ये कैसे। तो उन्होंने बोला माई हीर जो है ना वो पूरी दुनिया की माँ है। तो क्योंकि वो अपनी माँ को इतना मिस करते थे तो वो चुपके से वहाँ जाना शुरू कर दिया उन्होंने। और माई हीर के मज़ार के बाहर जो लोग बजाते थे, सूफ़ी संगीत बजाते थे, वहाँ से उनको मज़ा आना शुरू हुआ सूफ़ी संगीत का। तो वहाँ से वो खुद ही बताते थे कि कनेक्शन है और समझाते थे मुझे कि जो ये यार या मीत बोल रहे हैं ये ईश्वर को बोल रहे हैं ये। तो तब थोड़ा मुझे समझ आया कि उन्होंने क्या उनका रुझान था सूफीज़म की तरफ को। That's all. बाकी तो बहुत सी यादें हैं, शायद समय भी ख़त्म नहीं होगा उनकी बातें याद करते करते, लेकिन आई थिंक फॉर दैट एवरीबडी शुड रीड दिस बुक एंड दे विल कम टू नो मोर अबाउट हिम। जी बिल्कुल। सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ पंडित जी जिनका दूसरा नाम संगीत था, उनके जीवन का सफ़र संगीत नामा जाना गया, तो हम इस शाम को अंजाम देते हैं एक संगीत से ही देते हैं। आप अपनी फेवरेट बंदिश जो उनसे जुड़ी हो वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। तो ये कौशिक रंजनी राग में है और ये भी गुरुजी की लिखी भी हुई है और कॉम्पोजिशन जाहिर है उन्हीं का है। सुन रे सजनवा मोरे, सुन रे सजनवा मोरे, सुन रे सजनवा मोरे, सुन रे सजनवा मोरे। तुम बिन जैसी रहना वैसी भोर, तुम बिन जैसी रहना वैसी भोर, सुन रे सजनवा मोरे। तो है ध्याय सोई तुम्हारे ध्यान जागी में तो रंग, तो है ध्याय सोई तुम्हारे ध्यान जागी में तो रंग, आँखें अन अभागी लगी चाहोर, सुन रे सजनवा मोरे। तुम बिन जैसी रहना वैसी बोर, सुन रे सजनवा मोरे। थैंक यू, शुक्रिया।
with that beautiful voice and all the beautiful thoughts that we have discussed about this one human being who has meant so much, but in so many different ways for all of us. किसी के फादर, किसी के फादर इन लॉ, किसी के गुरु, पर सबके चहेते. तो I thank all of you for participating in our joy today on his 100th birthday. Special thanks goes out to my publishers, our publishers. I have also published with them and we couldn't have asked for better. So a very big round of applause for Om Books International, Ajay Mago, and editor and friend philosopher and guide Shantanure Chaudhary. Thank you. Thank you, Gajra. Thank you, Nirmal. Rekha, thank you so much. It is indeed rare that a voice makes you weep, that a voice makes you want to cry. And Harivansh Rai Bachchan has said, मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हाला हल, कोई अपने स्वर में मधुमेह कर बरसाता, कोई गाता मैं सो जाता. This is the voice of Pandit Amarnath. This is the voice of somebody who trained under Pandit Amarnath. On that note, thank you all of you all again. Thank you all of you. A request: nobody leaves the room without a copy of the book. Please buy. Please get to know the man behind the musician. And we also have this particular book that I mentioned, the Dictionary of Hindustani Classical Music, which should have been out which was out 3-4 years back, but because of the lockdown, the book is available here. Gajra's book, Autumn Blossoms, is available here, as is Kalyani's book of translation of short stories, which I owe Rekha a lot for doing the book with Om Books, a collection of short stories, Russian short stories in Hindi. These books are all available. I must share with everyone that Panditji's favorite writers of Russian short stories are all featured in that book. He was a great fan of Russian literature. He used to share with both of us. So Rekha's sister has translated that book and it's a beautiful book. Yeah, and you know, the serendipity that I mentioned, kahan se you these threads get connected. I never realized when I first spoke to Rekha, when she first mentioned the dictionary idioms of Hindustani classical music, which became this book and which led to this book and the Russian stories book. So thank you so much. All of you can get a copy of the book and get it signed by Nirmal here. Thank you so much.